नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। आज हम दूसरा स्कंद भागवतम से 7 अध्याय में से तीसरा नंबर जो श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यं स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे उच्चेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपद्ये। Translation. The Lord then appeared as Kapila incarnation, being the son of the Prajapati Brahmana Kardama and his wife Devahuti, along with 9 other women sisters. He spoke to his mother about self-realization, by which in that very lifetime she became fully cleansed of the mud of the material modes and thereby achieved liberation, the path of Kapila. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ये तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, जितना हो सकता है हम उतना पढ़ेंगे। The instructions of Lord Kapila to his mother Devahuti are fully described in the 3rd canto, chapters 25 to 32 of the Srimad Bhagavatam, and anyone who follows the instruction can achieve the same liberation obtained by Devahuti. The Lord spoke Bhagavad Gita and thereby Arjuna achieved self-realization. And even today, anyone who follows the path of Arjuna can also attain the same benefit as Sri Arjuna. The scriptures are meant for this purpose. Foolish, unintelligent persons make their own interpretation by imagination and thus mislead their followers, causing them to remain in the dungeon of the material existence. However, simply by following the instructions imparted by the Lord, by Lord Krishna or Lord Kapila, one can obtain the highest benefit even today. The word Atmagatim is significant in the sense of perfect knowledge of the Supreme. One should not be satisfied simply by knowing the qualitative equality of the Lord and the living being. One should know the Lord as much as can be known by our limited knowledge. It is impossible for the Lord to be known perfectly as He is, even by such liberated persons as Shiva or Brahma. So what to speak of other demigods or men in this world? Still, by following the principles of the great devotees and the instructions available in the scriptures, one can know to considerable extent the features of the Lord. His Lordship Kapila, the incarnation of the Lord, instructed his mother fully about the personal form of the Lord, and thereby she realized the personal form of the Lord and was able to achieve a place in the Vaikuntha Loka, where Lord Kapila predominates
Every incarnation, the Lord has his own abode in the spiritual sky. Therefore, Lord Kapila also has a separate Vaikunta planet. The spiritual sky is not void. There are innumerable Vaikunta planets. Even in the Mamcha Yovyabhicharina Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatuyaitan Brahma Bhuyaya Kalpate. Even in the non-liberated stage, a living entity can be directly engaged in the transcendental loving service of the personality of Godhead, Lord Krishna, or his plenary expansions like Rama and Narasimha. Thus, with the proportionate improvement of such transcendental devotional service, the devotee makes definite progress towards Brahma Gatim or Atma Gatim and ultimately attains Kapilashya Gatim or the abode of the Lord without difficulty. The antiseptic potency of devotional service to the Lord is so great that it can neutralize the material infection even in the present life of a devotee. A devotee does not need to wait for his next birth for complete liberation. Om Ajnantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manohishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantigam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Vansha kalpatarubhyascha Ripa sindhubhyayevacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesham Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Karoti vachalam pangum langayati girim yatripatamaham vande Shri Gurun Deenatharinam Shri Chaitanya Ishwaram Paramanandi Madhavam. तो
मैं सभी भक्तों को इस मंगलवार कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ और सभी वैष्णव और सभी भक्तों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी असीम आशीर्वाद और कृपा से हम इस भागवत पुराण श्रीमद् भागवतम के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो भगवान और भक्तों की कृपा से ही हम कुछ उनके बताते कि गुणनिधि जो सागर है, भगवान के गुण की सागर जैसे उनकी गुणों की, उसमें से एक बूंद के बारे में हम कुछ चर्चा कर सकते हैं। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद लेके हम इस कथा को शुरू करते हैं। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरे वजह से आपको 2-3 आपको मेरा सेवा था यहाँ आने का, पर दामोदर सखा को मैं कैसे भी कुछ बहाना बना के भी नहीं आ पाता था। और मेन है कि हनुमान अंजनेय पुत्र हनुमान जी के जो हनुमान जयंती के अवसर पे ये जगह उनके गुणगान के लिए बहुत लोगों को सेवा के लिए यूज़ करा, इसलिए कथा करने के लिए जगह नहीं था। तो आज उनके स्मरण करते हम इस भागवत कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने अभी जो अध्याय चल रहा है भगवान की जो अलग अलग लीलाओं के बारे में, जब हमें वो अवसर मिला था तो हमने भगवान वराह देव के बारे में बताया था। तो अभी दूसरे श्लोक में, ये श्लोक बहुत अच्छा है, ये जो इन्होंने व्यासदेव जी ने जो कंपाइल किए थे, मैं से उसका तात्पर्य एक बार पढ़ता हूँ। द लॉर्ड देन अपीयर्ड इन द कपिला इनकारनेशन बीइंग द सन ऑफ प्रजापति ब्राह्मण कर्दमा एंड हिज वाइफ देवहूति along with 9 other women sisters. He spoke to his mother about self-realization, in which that very lifetime she became fully cleansed of the mud of material modes and thereby achieved liberation, the path of Kapila. So आज हम भगवान की जो और एक अवतार है कपिला देवा, किसी ने सुना है कपिला मुनि? सुना उतना तो नहीं है आपको, हमारे दुर्भाग्य है हम लोग ने कपिल मुनि का नहीं सुना है, पर कपिल देव का नाम तो सुना है और पता है कि ऑफकोर्स थोड़ा चैप्टर को हट के थोड़ा उसमें बोलते ना थोड़ा हंसी लाने के लिए बोलते ना 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए कपिल देव का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ऑफकोर्स अज्ञात सुकृति में भी हम उनके माता पिता के लिए बहुत धन्य हैं जो उनका नाम कपिल देव रखे थे, क्योंकि कपिल भगवान की जो नाम का जो स्मरण भी करता है, मे भी उनको भी पता नहीं रहेगा, हुआ तो अच्छी बात है, पर जो व्यक्ति उनको कपिल देव बोल के उनको अज्ञात सुकृति से कपिल मुनि भगवान के जो अवतार है उनका नाम का पठन कर रहे थे तो हम बहुत कृतज्ञ हैं। तो शास्त्र में लिखा जाता है कि भगवान की और एक महत्वपूर्ण अवतार था। भगवान जब ब्रह्मा जी के स्वयंभुव मनु को जब बोलते हैं, ब्रह्मा जी आज्ञा देते हैं इस सृष्टि की रचना करो, तो उस समय भगवान उस समय कपिल देव के रूप में अवतार लेते हैं। पार्शियल एक्सपांशन, भगवान के एक निज अंश, महत्वपूर्ण अंश के रूप में लेते हैं। तो ये कथा बताते कि भगवान कोई साधारण परिवार में जन्म नहीं लेते हैं। बोलते ना सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। भगवान और उनके भक्त कोई एयरफेयर या कोई साधारण परिवार में जन्म लेते, उनकी जो बताते कि भविष्य में लिखाया जाता है, और वैसे सदाचार संस्कृति और सद्गुण के परिवार में उनका भगवान अवतार लेते हैं। तो स्वयं मनु जो फर्स्ट भगवान के जो क्रिएटर है,
ब्रह्मा जी से पहले मनु, ऐसे बहुत सारे मनु हैं, पर पहला मनु हमारे स्वयंभुव मनु है। और स्वयंभुव मनु स्वयं बड़े भगवान के बड़े भक्त थे, और उनके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो भक्त नहीं थे। बोलते ना, कभी कभी हम बोलते आपके प्रभु जी आपका तो पूरा परिवार ही भक्त है। ऐसा नहीं कि कोई साधारण भक्त, सभी बताते कि फर्स्ट क्लास डिवोटीज, फर्स्ट क्लास, कोई जैसे चिंटू मिंटू, नॉट इन द सेंस चिंटू मिंटू, मतलब एकदम ढीले जैसे भक्त नहीं, थोड़ा भौतिक और सीरियसली तो एकदम सीरियस, वैसा एंटायर इनका फैमिली में अगर देखा जाए, स्वयंभुव मनु के पूरे परिवार में एक से एक बढ़कर भक्त थे। स्वयंभुव मनु के जो पत्नी थी शतरूपा, वो खुद ही भगवान की इतनी श्रेष्ठ भक्त थी, और उनको 5 वंश हुए, 5 बच्चे, 2 लड़के और 3 लड़की। और 2 लड़के थे महाराज प्रियव्रता। तीसरा स्कंद भागवत में हम जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रियव्रत महाराज के जो त्याग है हम देखेंगे तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और दूसरे थे महाराज उत्तनापाद। उत्तनापाद कोई जानते हैं कौन है महाराज उत्तनापाद? एनीवन? ध्रुव महाराज के पिताश्री, जिसके वंश में ध्रुव महाराज जन्म लिए थे, जिसके वजह से भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में अवतार लेके ध्रुव महाराज को कृपा दिए थे। ऐसी कथा ही नहीं है जहाँ ध्रुव महाराज का उल्लेख नहीं होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा 100 बार सुनते थे। गदाधर पंडित सुन, पुनः उच्चारण करो, पुनः उच्चारण। ध्रुव महाराज की कथा, काचम विचिन्वान अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। उनके पिताजी थे उत्तनापाद, और उनकी 3 बहन थे, 3 डॉटर्स फॉर स्वयंभुव मनु, अकुति, प्रसूति, और लास्ट है देवहूति। देवहूति एक्चुअली पिताश्री को पुत्र से ज़्यादा लगाव पुत्री से होता है, क्योंकि कितना बोले तो पराय धन होती है। उनको पता है एक न दिन तो मेरे को कन्यादान करके तो उसको छोड़ना ही है, तो लगाव बहुत रहता है, जाने के बाद भी लगाव रहता है। तो स्वयंभुव मनु के सभी बहुत अच्छे, सभी लोग हैं, पर ज़्यादा लगाव उनको अपनी सबसे छोटी पुत्री देवहूति के प्रति ज़्यादा आसक्ति था। और उन्होंने ये जो तीनों पुत्रियां का जो विवाह भी किए थे, अकुति को उन्होंने सेज रुचिरा, जो बोलते हैं एक हमारे जो इस गुरु शिष्य परंपरा या बताते हैं कि बहुत सारे साधु संत रहते हैं, उसमें एक महान संत थे रुचिरा, अकुति, उनके साथ उन्होंने विवाह किया। और प्रसूति, और उसी में अकुति और रुचिरा के गर्भ से वापस भगवान यज्ञ रूप के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान की जो अवतार यज्ञ, जो हम भगवान को जब आहुति चढ़ाते हैं, जो यज्ञशाला में जो अग्नि आता है वो भगवान के रूप है, अवतार यज्ञ। तो ये जो अकुति और रुचिरा के गर्भ से भगवान यज्ञ, भगवान की और एक अवतार आए थे। और प्रसूति स्वयंभुव मनु की दूसरी पुत्री, उन्होंने दक्ष प्रजापति को जन्म दिया था। दक्ष प्रजापति के जो उनके साथ विवाह करवाया था प्रसूति का, और उसमें से बहुत सारे पुत्रियां जन्म ली थी। पर उसमें से हु इज वन ऑफ द फेमस डॉटर ऑफ दक्ष? सती, दक्षयाणी सती। देखिए, सती भगवान शिव जी के साथ बाद में विवाह करते हैं। और लास्ट है देवहूति।
देवहूति बताते कि ये चैप्टर व्यासदेव बहुत हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की दया और उनकी कृपा से अगर हमें अवसर मिला तो तीसरे स्कंद भागवतम में कर्दम मुनि और देवहूति के बारे में बहुत ही इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन है। फिर भी हमारे शुद्धिकरण के लिए थोड़ा हम बताते हैं। तो लास्ट में देवहूति का जो विवाह था, स्वयं वो मनु को बहुत विचार आता था, मेरी सबसे लाडली पुत्री में किसको उनको किसको दे दूँ मैं। तो बहुत सोचेंगे, बताते हैं, ये मैं काल्पनिक नहीं बोल रहा हूँ, ये हुई घटना है। और अगर आप तीसरे स्कंद भागवतम में देखेंगे तो ये फैक्ट है। आज की जो सो कॉल्ड बताते ना मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स या मिस जो भी है सौंदर्य स्त्रियां, अगर देवहूति उनके सामने खड़े हो जाते तो उनकी जो सौंदर्य लज्जा से भाग जाते थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सौंदर्य बताते कि हम 2-3 लोगों को कॉन्टेस्टेंट्स को बोलते कि उनको सिलेक्ट कर देते, बोलते आप मिस यूनिवर्स बन गए, और दूसरे साल वो रहती नहीं है, उसके बाद चेंज होता है क्योंकि चमड़ा गिर जाता है। पर देवहूति की सौंदर्य यहाँ के लोग नहीं, उल्टा देवलोक से लोग देवहूति को देखते थे, काश देवहूति का हाथ मुझे मिल जाता। सब लोग होप अगेंस्ट होप, भगवान स्वयं वो मनु को ऐसा इच्छा आ जाए कि देवहूति का हाथ मेरे बारे में मिल जाए। तो कभी कभी देवहूति बताते हैं कि टेरेस में जब बॉल के साथ खेलते थे तो आकाश में उस समय सत्ययुग के उस समय देवगण एयरप्लेन में जाते थे। ऑफ कोर्स नॉट बोइंग 747, वो जो नॉर्मल जैसे बोलते हैं पुष्पक विमान जैसे, जो उसमें जो आवाज़ नहीं आता, पर नीचे जब देखते थे तो देवहूति का सौंदर्य देखे वो प्लेन से गिरते थे। तो उतना सौंदर्य थी उसके भगवान की, मतलब ये उनकी एक अन्य असीम कृपा है। तो जब विवाह का समारोह आ जाता है तो नारद मुनि से स्वयं हुआ मनु पूछते हैं कि किसको मैं देवहूति के हाथ किसको दे दूँ। तो तभी त्रिलोक ज्ञानी नारद मुनि बताते कि अगर आध्यात्मिक में आपको प्रगति करना है और आप इस वंश के प्रजापति हो, और अगर ऐसा वंश चाहते हो जिसमें भगवान स्वयं अवतार ले, तो इस धरती में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो देवहूति की स्वीकार करने के लिए एक ही व्यक्ति है जो इसका योग्य है, और वो है कर्दम मुनि। कर्दम मुनि देखिए, कोई अगर अलायंस लेके आता है तो हम सोचते हैं कि लड़का क्या कमाए, क्या पढ़ा है, क्या कमाता गया है। अगर ऐसा कोई है तो उसी टाइम दयाल चंद्र वो हमेशा बताते हैं, उनको एक व्यक्ति मिलता था, बोलता था कि अगर कोई प्रपोजल मेरे बेटे लोग के लिए लेगा तो A to Z देखता हूँ मैं, A to Z होना चाहिए क्वालिफिकेशन, A फॉर कुछ है उसमें बहुत सारा, इतना एलिजिबिलिटी है तो मैं आना चाहिए, नहीं तो कोई मेरे बेटे के लिए नहीं आ। तो यहाँ पे जब नारद मुनि उन्होंने एक ही संदर्भ रखा तो स्वयं भुआ मनु उसके बारे में सोचे भी नहीं। बोले नारद मुनि आप अल्टीमेट अथॉरिटी, आप बोले इसके बाद कोई काल्पनिक, मुझे कोई कल्पना कोई डाउट ही नहीं है। और तुरंत, और इनका क्या क्वालिफिकेशन था, कर्दम मुनि बताती कि एक वनाचारी थे, वन में रहते थे, उनके पास कोई घर नहीं था, पर इतने भगवान के इतना श्रेष्ठ भक्त थे कि भगवान को कॉन्स्टेंटली स्मरण करते थे। उनकी तपस्या से भगवान स्वयं मानस गंगा आ चुका था, भगवान स्वयं उनके तपस्या से रो के एक मानस सरोवर हुआ था। इतने प्रीतिपूर्वक भगवान की आराधना करते थे। इसलिए नारद मुनि सोचे कि अगर स्वयं वो मनु आप चाहते हो कि इस वंश का उद्धार हो तो एक ही व्यक्ति है, वो है कर्दम मुनि। और जब कर्दम मुनि को बुलाया गया था, उनको कोई इस भौतिक दुनिया में कोई आसक्ति नहीं थी, फिर भी नारद मुनि जब बोलते ना महाजनो ये न कथस्तु बनता, जब एक गुरु की कोई इंस्ट्रक्शन रहता है तो तभी एक शिष्य उसमें बताते हिचकिचाता नहीं है, अरे मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऐसे कैसे कर।
बोले मेरे हित के लिए होगा तो मान लिए मैं देवहूति के साथ विवाह करूँगा। और वही विवाह के बाद जब विदाई होता है तो स्वयंभुआ मनु, नहीं थे नॉर्मली जैसे हम देखते हैं जो रईस घराने के स्वयंभुआ मनु, मतलब आज कोई अंबानी और अदानी भी कुछ नहीं है, इतने बड़े होल प्लैनेट वाज हिज। सो सोच लीजिए उनको किसी बड़े बड़े रथ और इसको भी इसके साथ भी बेच सकते थे। और जब विदाई किए तो कोई रथ के साथ नहीं, बेचारे दोनों पति पत्नी चले किधर, वन में उनका एक झाड़ और एक छोटा सा झोपड़ी था और उधर वहाँ से, और देवहूति को कोई कंप्लेंट नहीं था। देखिए ये सत्व गुण का लक्षण है। ऑफकोर्स हम आजकल के ये नहीं बोलते कि इसका नकल करो, कल से सभी ऑल द फादर्स गेट मैरिड, नो नो, यू कैन नॉट, इसका नकल नहीं करना चाहिए। बताइए उसको क्या बोलते हैं, लाइक अनुस्मृति, व्हाट इज दैट, अनुसरण। हाँ, अनुसरण नहीं करना, अनुकरण करना नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। यू शुड फॉलो, नॉट इमिटेट। वो किया है मैं कि मैं भी करना चाहिए, नो, यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इसमें आने वाला क्या इंस्ट्रक्शन क्या है वो महत्वपूर्ण है। शिव जी ने ये पिया, विष पिया, कल मैं भी जाके विष पिया, तो वी आर नॉट ऑन दैट। व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस, इसमें ये कथा में हमें क्या सीखने के लिए मिलता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, तो एक ही है कि पतिव्रता, देवहूति की जो पतिव्रता है उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते थे, एक कंप्लेंट भी नहीं। पिताश्री आपने बोला दैट्स इट, आप मेरे गुरु के समान हो, ही इज़ माई हस्बैंड लाइफ आफ्टर लाइफ, आप यही मेरे पति है और मुझे कोई इच्छा नहीं है। और जब देखिए कर्दम मुनि ये बोलते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज हमेशा बता रहे, जब भी हमारे कम्युनिटी में जब भी विवाह होता है तो वो पुराण और पुरातन काल से ये उदाहरण लेते हैं। आज भी जब आहुति डालते हैं पूरा पुजारी लोग, तो कर्दमा देवहूति के नाम से आहुति डालते हैं, शिव पार्वती की आहुति। क्यों? क्योंकि दाम्पत्य जीवन में उदाहरण ऐसे लोगों का अगर रह गया तो वो दाम्पत्य जीवन बताते हैं कि उसमें कोई सद्गुण आता है, उस सत्व गुण में आ जाता है। तो अगर हमारे मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होना है तो इनकी आशीर्वाद है तो बहुत सक्सेसफुल है। तो देवहूति और कर्दम मुनि का बताते कि लॉयल्टी और चैस्टिटी, कर्दम मुनि ऐसे नहीं कि थोड़े समय अरे देवहूति हाँ, उसके बाद दूसरी औरत कहते, नो, लॉयल, शी इज़ माई वाइफ, एक पत्नी व्रता। जैसे अभी राम कथा चल रहा है, भगवान श्री राम जब बोलते थे एक ही उन्होंने शपथ में एक पत्नी व्रता, दैट इज मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कर्दम मुनि ने भी बोला एक ही, देवहूति इज माई वाइफ, मेरी पत्नी वही है और कोई स्त्री मेरे को कोई माता के समान है। और देवहूति का एक ही लक्षण था, लॉयल्टी, चैस्टिटी, पतिव्रता। ऐसे नहीं कि ये और हैंडसम रहता तो अच्छा रहता था, थोड़ा बॉडी, नो, वॉट एवर इज कृष्णास मर्सी। तो वो पतिव्रता से जब कर्दम मुनि तपस्या करते थे, देवहूति ऐसे बैठ के बाजू में, वो सिर्फ वो जैसे उनके पति करते थे वैसे ही पालन करते। जैसे उनका तपस्या हो जाता था, उनका खाना पीना, मतलब जो फल जो वो बाकी जो जंगल में मिलते हैं उसको अरेंज करते थे, उनके लिए पानी, उनकी साधना के लिए वो रखती थी सब अपना कुशाग्रास, अचमान पात्रा, ये मीनियल सर्विस करती थी। बोलती थी मैं तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ पर मेरे पति जो करते हैं वही मेरे लिए। तो हमेशा जब वो बताते कि कभी कभी कर्दम मुनि की तपस्या इतना घनघोर रहता था कि बताते कि 2-3 दिन तक वो ध्यान रखते थे, और देवहूति जब तक अपने पति नहीं खाते थे वो नहीं खाती थी। वो एकदम नहीं, जब तक वो आएंगे मेरे प्रभु नहीं आएंगे मैं कैसे ले सकती हूँ। देखिए ये एक बताते कि इट इज़ नॉट अ सबड्यूड मेंटालिटी। ये किसी बताते ना आजकल बोलते ना आप लोग औरत लोग को दबा के रखते हो, दिस इज नॉट, इट इज़ अ वॉलंटरी सैक्रिफाइस, इट इज़ अ वॉलंटरी सैक्रिफाइस। ये प्रेम है, ये बंधन एक प्रेम का बंधन है, और उसमें जो जननी निकलता है वो त्रिलोक में गुणगान किया जाता है। तो वे बंधन, ये जो बंधन कोई दबा के नहीं करता है, वो खुद के प्रेम का बंधन है।
और वो जब वो आ जाते थे कितना उस समय तक उपवास में रहती थी, देवहूति खाती भी नहीं थी। और कभी कभी कर्दम मुनि भूल भी जाते थे देवहूति को पूछने के लिए कि देवहूति तुमने कुछ लिया, वो थोड़ा फल फूल खा ले, वापस तपस्या में बैठते थे। तो ऐसे ही करते करते वही देवहूति का हालत एकदम खराब होते गया। पूरा बता दी कि वो जंगल में उसके बाल कैसे बिछड़ते थे, वो पता ही नहीं। वो इतनी अपने पति की सेवा में इतने मग्न थे, तो उसको खुद की शरीर के ऊपर कोई कंसर्न ही नहीं था। देखिए, एक भक्ति में बताते हैं, जब जो व्यक्ति अर्चा विग्रह भगवान की सेवा में जब एकदम गनगोर हो जाते, एकदम ध्यान लगा दे, उनको सिर्फ यही है कि भगवान को कैसे श्रृंगार करो, भगवान को कैसे श्रृंगार, तो तब हमारी जो प्रोपेंसिटी है, ये हमारे शरीर को सौंदर्य करना, वो अपने आप निकल जाता है। नहीं तो हमें ये बता दें कि ना हम कितना अच्छा लगते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हाउ डू आई लुक हैंडसम, अभी मेरा हेयर में थोड़ा सफ़ेद दिखे उसको काला करे, या कोई मेरा थोड़ा फेस लिफ्टिंग या जो वो सब निकल जाता है। क्योंकि मोर इम्पोर्टेंट इज भगवान गोपीनाथ को मैं श्रृंगार कैसे करूं, उनकी श्रृंगार अच्छा हुआ तो मेरा श्रृंगार हो जाएगा। अगर मेरा, जैसे बता देना, एक मिरर को, एक दर्पण को अगर आप श्रृंगार करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। हम अपने आप को श्रृंगार करें तो दर्पण अपने आप सुंदर दिखेगा। उसी तरह भगवान की जो श्रृंगार करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो हृदय निज स्वरूप सुंदर हो जाता है। तो उसी तरह देवहूति अपनी कोई देखभाल, वो उनको पति सब कुछ है, मेरे पति मेरे भगवान है। तो पर कर्दम मुनि ऐसे करते 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 उनको पता चला कि एक दिन अकस्मात उनको पता चला, मैं मेरे ध्यान में निवास हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल गृहस्थ। मेरी पत्नी का इट इज़ नॉट त्याग नहीं है, इट इज़ इररेस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी बोलते हैं अरे यू आर माया, कभी कभी हो जाता है, हम सीरियसली लेते। पत्नी मतलब मोह माया, माया का बंधन है, इसलिए दूर रहना चाहिए। नो जितना ये बता दें फाल्गु वैराग्य। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते कि भगवान मैं आपके साथ रह जाए, मरकट वैराग्य मत करो रघुनाथ, डोंट डू मरकट वैराग्य, दाम्पत्य गृहस्थ आश्रम में रह के उत्तीर्ण हो जाओ, दैट इज रियल वैराग्य। कैन यू सी गॉड? इसलिए महाराज बताते कि आपकी पत्नी आपकी संपत्ति नहीं है, भगवान की संपत्ति है। वो आपको दिया क्या है, अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते हो, यू हैव टू पे फॉर इट। सो दैट्स व्हाई तभी कर्दम मुनि पता चला ये मेरा तपस्या, मेरा कर रहा हूँ मैं, मेरे लिए कर, बट व्हाट अबाउट हर? तो तभी बोले देवहूति मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें कुछ ख्याल नहीं रखा। बोले नहीं स्वामी आप जो बोले, नहीं नाउ इज़ द टाइम, पूछो मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो देवहूति नहीं, आपके जो दो ये जो कण के जो महाप्रसाद मिलते वही बस हो गया। बोले नहीं ठीक है, तुम्हें नहीं मांगना आता है तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और बोलते कि वो कर्दम मुनि थे, मुनि मतलब मिस्टिक, उनको जो चाहिए उनके हाथों में था, उन्होंने दिखाया नहीं था। स्वयं वो हमारे के सामने अगर वो पूछते थे तुम्हारे पास क्या है, वो एक बता दे कि अगर एक छलांग भी दिखाते तो बता दे सिर्फ देवों के सभी स्त्रियां भागते आती थी, प्लीज मेरे से शादी करो, मेरे साथ। तो तभी कर्दम मुनि ने बताया देवहूति देखो मैं क्या कर सकता हूँ। और तुरंत उनकी सिर्फ सोच से, जस्ट बाय द थॉट ऑफ कर्दम मुनि, उन्होंने एक महल क्रिएट किया। महल मतलब कैसा महल, जो आकाश में बोलते ना उड़ता हुआ महल, अ फ्लाइंग पैलेस। कौन नहीं सोचेगा, किसी के पास है, किसके पास मिले, जेट एयरवेज हो, बोइंग होगा, कुछ भी बड़ा फ्लाइट होगा या चार्टर्ड प्लेन, बट खुद का घर। जैसे अगर आप देखे हो कि साउथ बॉम्बे में सबसे बड़ा घर एंटीला है पर वो भी रुका हुआ है, आकाश में उड़ता तो नहीं है, एवरीथिंग इज। बट कर्दम मुनि ने ऐसा एक किया, पैलेस क्रिएट किए कि जो आकाश में उड़ता था। तो बोले देवहूति चलो ये तुम्हारे लिए है। और तुरंत जाकर इसमें एक बताते कि एक बहुत अच्छा पॉन्ड है,
एक पुकुर है, उसमें तुम स्नान कर लो। और उसके बाद कर्दम मुनि उनको जितना गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तीनों भी जो सद्गुण है उनको प्रदान करते हैं देवहूति को। धर्म अर्थ मतलब इतनी दौलत देते हैं, इतना ये प्रदान करते हैं, क्योंकि तुमने जो तपस्या की था वो सबसे धर्म अर्थ काम और लास्ट है मोक्ष। ये चार बता के ये दीज आर द 4 पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ से एक गृहस्थ को पालन करने के लिए। तो ये जब पूरे जितने कितने सालों साल देवहूति और कर्दम मुनि उस महल में किधर चाहे वहाँ इच्छा से घूमता था। अगर आज सोचे चलो आज इंद्रलोक जाए तो इंद्रलोक जाता था, चलो आज हम सूर्यलोक जाए सूर्यलोक जाए, चंद्रलोक किधर चाहे ब्रह्मलोक उधर। आज ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जो किसका भी घर जा इच्छा चाहे वहाँ, पर यह था वो उधर का उधर ही रहता, पर ये इच्छा के रूप से जाता था। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं है, स्त्री का सबसे बड़ा धन रहता है उनको पुत्र कामिष्टि। उनको जब बच्चे होते हैं तो सबसे बड़ा आनंद। तो उसमें से कर्दम मुनि ने 9 बताते कि बेटियां पुत्रिया का जन्म बेटी स्त्री उन्होंने बेटी 9 बेटी उनको उनके गर्भ में प्रदान करते हैं। और उसके बाद लास्ट जब वो 9 बेटियों की शादी होने के बाद कर्दम मुनि और देवहूति में भगवान कपिल देव जन्म लेते हैं। कपिल मुनि ये यहाँ से शुरुआत होता है। कपिल देव भगवान देखिए ये तपस्या से ये कोई साधारण गर्भ में भगवान ने जन्म नहीं लिया। देवहूति और कर्दम मुनि की शुद्धता और उनकी तपस्या से ही भगवान आते हैं। लॉर्ड डजंट टेक बर्थ एनीवेयर किसी से, ग्लोरिफाइड अमंग द श्रीमद् भागवतम। और जब कपिल देव जन्म लेते हैं, कर्दम मुनि डिसाइड करते हैं नाउ इज माई टाइम टू एंड। देखिए इसलिए महाजनम ये ना गथास्तुपंता कर्दम मुनि वहाँ पे निवास, मेरा काम हो गया, मैंने तुम्हें पुत्र का भाग्य सौभाग्य दे दिया, अभी माई ड्यूटी इज टू रिनाउंस। अभी तुम्हारा बाकी का कार्य भगवान कपिल देव तुम्हें बता देंगे। और कर्दम मुनि कपिल मुनि की परिक्रमा करके 3 बार उनको परिक्रमा करके भगवान मैं अभी मेरे तपस्या के लिए चले जाऊंगा, अभी रेस्ट आपके ऊपर है, क्योंकि पुत्र होके आपका कार्य है अभी। और भगवान कपिल देव के आशीर्वाद से कर्दम मुनि चले जाते। उसके बाद कपिल देव जो सांख्य फिलॉसफी देवहूति को बताते हैं उसके लिए भगवान ने जन्म लिया था। देवहूति भगवान कपिल, ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे वो बड़ा चैप्टर है जिसमें कपिल देव एकदम सीरियस डिवोशन के बारे में बताते लगते हैं देवहूति को। वही देवहूति इतनी तपस्या करने के बाद भगवान बताते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग, और कितना जन्म का उद्देश्य क्या है, और उसके बाद कैसे इस श्रृंखला से निकलना चाहिए। जो भगवद गीता का ज्ञान है कपिल देव सांख्य फिलॉसफी में बताते हैं। और तभी वही देवहूति इतना रैप्ट अटेंशन में सुनती है, बताती कि इतनी तीव्र से भगवान मेरा इच्छा क्या, मैं एक स्त्री हूँ, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ। तो भगवान कपिल देव उसको बताते यही देवहूति बताते। लास्ट में एक सारांश में बताता हूँ कि देवहूति की जो त्याग था इतना तेज होने लगा कि यही जो विमान है, ये जो पैलेस, कौन छोड़ना चाहेगा। अगर किसी स्त्री को बताए बेटा, पति ने बोला ले ये बंगलो तेरे नाम में, अब से तू जो चाहती है तो कर ले, बोला चलेगा, कौन छोड़ेगा। इतना कंफर्ट जोन बताते हैं कि उनकी जो, मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन करता हूँ, उनकी जो बेडशीट है, बेड जो गदिया है उसको व्हाट यू कॉल बेड, गद्दी व्हाटएवर, बेड में जो बेडशीट रहता है वो इतना मुलायम था, जैसे बोलते ना दूध के ऊपर जो
मलाई लगता है ना, मलाई आ जाता है, वो कितना मुलायम रहता है, उतना सॉफ्ट वो बेड था। एक छोटा सा ऑपुलेंस था, तो बाकी चीज कितना ऑपुलेंस है, पर वही देवहूति साधना भक्ति करते करते, कपिल मुनि की जो श्रवण करते करते वो इतना वैराग्य आने लगा कि यही ऐश्वर्य उनको छुभने लगी। शी वॉज लिटरली डिटैच्ड, वो रह के भी नहीं रह रही थी उसमें, क्योंकि उसका ध्यान था भगवान के चरणों में। वो कंप्लीटली सरेंडर टू द लॉर्ड, कंप्लीटली भगवान के शरणागति में। और वो शरणागति में देवहूति ने कंप्लीट त्याग देने के बाद वो ऐसी स्थल पे पहुंची जहाँ बोलते ना प्रेम भक्ति में वो अपना शरीर को त्याग दे के भगवान के वैकुंठ धाम में प्रस्थान किए थे। तो वन ऑफ द रीजन भगवान इस अवतार में आए थे कपिल मुनि सांख्य फिलॉसफी देने के लिए, ताकि हम जैसे व्यक्ति को उद्धार हो जाए। पर दूसरा रीजन क्या है कपिल देव आने का, कोई बता सकते हैं? What is the second reason for Kapila Muni to take incarnation as a Lord's incarnation? दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है जिसके वजह से आज हम अभी भी हमें उनके वजह से वो अवसर और वो कृपा मिल रहा है? कोई बता सकते हैं? What is the second reason for Lord Kapila Dev to incarnate? क्या रीजन है? कोई माताएं ट्राई गो बैक, कपिल मुनि क्यों अवतार लिए थे और उनके जीवन में क्या घटना हुई थी जिसके वजह से आज हमें बेनिफिट मिल रहा है? कोई नहीं। जिस देश में जोर से, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, किसके लिए? हमारे लिए। ये किसके लिए आए थे? बिकॉज ऑफ कपिल मुनि। अरे प्रभु आप क्या बोल रहे हो? कपिल मुनि कहाँ है? गंगा आई थी भगीरथ की वजह से। पर अगर हम इस कथा को देखते, आज हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरे कारण कपिल मुनि इज अ मेन फैक्टर। पर इस कथा को अगर हम थोड़ा रिवर्स करते, रिवाइंड करते हैं, लेट अस गो बैक अगेन पीछे, और एक कहानी। रघुवंश, सन डायनेस्टी, सूर्यवंश के वही सूर्यवंश में वही जगह पे सरायू नदी के पास में एक राज्य था। ये बालकांड अध्याय में, वाल्मीकि रामायण में ये कथा निकलती है। श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने बताया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बालकांड में ये निकलता है, सूर्यवंश में एक राजा थे, महाराज सगर महाराज बहुत पुण्यात्मा थे। पर उनकी दो पत्नियां थी, केशिनी और सुमति। सुमति, केशिनी और सुमति। दोनों पत्नियों में से उनको संतान नहीं हो रहा था। तो तभी तपस्या, भृगु मुनि से पूछते हैं, वो बताती कि आप तपस्या करो और तपस्या से आपको एक वंश हो जाएगा, दोनों पत्नियों से होगा। एक पत्नी को, आपके एक पत्नी से एक ही पुत्र होगा और वो पुत्र तुम्हारा वंश बढ़ाएगा, और दूसरे पत्नी से 60,000 पुत्र जन्म लेंगे, 60,000। देखिए जितने कितने सालों से वंश ही नहीं था, पर अचानक बोले तो 60,000 और एक में एक निकलेगा। तो महाराज सगर तो बोले जैसे आप बोले। और तपस्या करने के बाद केशिनी जो पहली पत्नी थी, बोले प्रभु मुझे एक पुत्र बस हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो केशिनी से निकलता है असमंजसा पुत्र जन्म लेता है,
और दूसरी पत्नी जो सुमति है, बताती कि वो एक जब जन्म लेती है, एक मांस के जो एक बताती कि एक गुब्बे को जन्म लेती है, इतना बड़ा, जैसे गांधारी ने जन्म दिया था, एक मांस का एक और उसके बाद भृगु मुनि के आशीर्वाद से 60,000 पुत्र उसमें जन्म लेते हैं। पर महाराज सगर का कोई आनंद की सीमा ही नहीं थी। पर दुर्भाग्यवश देखिए, कभी कभी बताते कि विधाता का क्या खेल है हम पता ही नहीं, जैसा पता चलता है जैसे सोचा था तो वैसे निकला नहीं। कभी कभी हम सोचते, सभी असाधु संतों के आशीर्वाद लेते, मेरा पुत्र एक भक्त बने, प्लीज मेरा एक पुत्र भक्त बने मेरा पर विधाता का क्या खेल है पता नहीं। ये असमंजसा बताते कि इतना नालायक पुत्र निकला, द वर्स्ट ऑफ ऑल द सन्स, नालायक पुत्र। बताते कि खलनायक ही जैसे था वो, जैसे महाराज अंगा को वीणा जैसे आपने सुना होगा, वीणा, वैसे असमंजस इतना नालायक था कि उसको बाकी सभी लोगों को त्रास ही करता था, जन्म से किसको भी सताना, ये करना, और ये भी नहीं ऐसा कोई किसको भी जाके ऑलवेज गिविंग एंग्जाइटी, दूसरे लोग को परेशान करते रहना। तो लोग सोचे ये कैसा पुत्र है यार, दूसरे को कोई साधारण हमेशा परेशान करते, वो साधारण ऐसे कुछ मारना पीटना ये। सो महाराज सगर 2-3 बार और उसकी माता केसनी पता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे बोलते नहीं ऐसा नहीं, कभी कभी डांट भी करता, मार भी खाता था, पर असमंजसा कुछ सुधारता ही नहीं था। और उसके वजह से देखिए कभी कभी बोलते ना, बड़ा भाई रहेगा तो दूसरे लोग भी वैसे ही फॉलो करते, इसलिए कभी कभी बड़ा पुत्र होना जन्म बड़ा गलती है। देखो कभी भी गलती हुआ तो पिताजी हमेशा बड़े बोलते, देखो तुम गलती, पर पापा मैंने नहीं गलती की उससे, नहीं तुम्हारा वो पालन करेगा, तुम रेस्पॉन्सिबल हो। तो बड़ा पुत्र हमेशा गलती नहीं किया तो मुझे ही डांट। तो उसी तरह असमंजसा को देख के 60,000 भी वैसे करते थे, बोलते ना भाईगिरी, अरे मेरा भाई वो है, तो सब लोग वैसे ही करने लगे। उनके सभी लोग एकदम बताते कि उन सब लोग पूरे राज्य में सब लोग को सताते थे। तो महाराज सगर एकदम युग में किसके लिए वंश पूछा था और क्या मिल रहा है मुझे, और सभी बोलते भाई ऐसा, भैया ऐसे करे तो हम भी करेंगे ना, हमारा मार्गदर्शक भैया ही है। तो एक बार ऐसा हुआ कि असमंजसा ये लेवल तक पहुंचा, उसने अपने आनंद के लिए उसने नगर के जितने भी बच्चे थे उनको उठा उठा के नदी में फेंक रहा था, और वो जब डूब रहे थे तो हंस रहा था, हा क्या सुंदर दृश्य है, और उठा उठा के सब फेंक। तो सब लोग बोल रहे क्या कर क्या रहा है, और सभी जाके महाराज सगर प्लीज हमें बचाओ बचाओ। सगर महाराज देखिए ये पुत्र वधु में वो एकदम ये नहीं थे, वो धृतराष्ट्र के जैसे वैसे नहीं थे, वो पुत्र मोह के वैसे नहीं, वो तुरंत बोले असमंजसा गेट आउट, भाग जाओ, तुम जैसे पुत्र, मैं विदाउट पुत्र जैसे रहता तो अच्छा था, गेट आउट, अभी निकल जाओ यहाँ से, निकल ही जाओ यहाँ से। पर असमंजसा उन्होंने पहले एक्चुअली असमंजस को प्रयास बहुत किया, इनका सबका विवाह भी किया, कभी कभी बोलते ना शादी करने के बाद ठीक हो जाएगा, पर शादी करने के बाद भी असमंजस ऐसे ही था। तो शादी करने के बाद उनका एक पुत्र हुआ अंशुमान, वो ऐसा नहीं था, पर ये व्यक्ति ऐसा होने के बाद तो इन्होंने बोला गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से, राज्य में चाहिए ही नहीं तुम जैसे बोलते, गेट आउट। और सीधा उसको बोलते ना वनवास में भगा दिया उसको, जैसे वनवास होना चाहिए, और यू सेंट टू द फॉरेस्ट। और उसके बाद वही वंश बढ़ाने के लिए अंशुमान को उन्होंने राजा स्थापना कर दिया, तुम बन जाओ। और उसके जो चरित्र में भी लिखा था अंशुमान विल बी द ग्रेट किंग, और अंशुमान पूरे राज्य को बहुत प्रिय था, अंशुमान सभी लोग के लिए प्रिय था। तो ये देख के महाराज सगर उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूं, अंशुमान जैसे राजा है तो इस त्रिलोक में कौन उसको ये कर सकता है, चुनौती दे सकता है। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया, और अश्वमेध यज्ञ में एक है कि अश्व मतलब क्या है, हॉर्स, उसको भेजा जाता है त्रिलोक में, कोई इसको बांध देता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध पर्व है एक, महाभारत में अश्वमेध पर्व है जहाँ अर्जुन लेके जाता है, अर्जुन वॉज टेकिंग द हॉर्स। तो उसी तरह इस अश्व को अंशुमान लेके जाता है। कोई है त्रिलोक में महाराज सगर को चैलेंज करने के लिए,
तो कोई नहीं था। और इसका एक फल रूप क्या है, जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करता है गारंटीड उसको इंद्र का पोजीशन मिल जाता है, गारंटीड। अश्वमेध यज्ञ सार्थक हो गया 110%, अगले जन्म में वो इंद्र है। तो उस टाइम कौन विचलित हो जाता है बोलते ना मेरा पदवी, आजकल पार्लियामेंट में बोलते अरे तुम्हारे बाद 100% वो मंत्री बनने वाला, तो बोलते अरे जैक मार के उसको कैसे भी करप्शन में बसा दे ताकि मेरा सीट कोई निकले नहीं। आजकल वही देखते ना, हनी ट्रैप, मनी ट्रैप, ये ट्रैप वो ट्रैप कैसे भी उसको फंस गया। तो उसी तरह इंद्रदेव को पता अरे महाराज सगारा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, बाप रे मेरा हालत कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत एक मतलब राक्षस के रूप में जन्म, एक अवतार लेके उन्होंने इनके ध्यान जरा से हटने के बाद वो अश्व को चोरी करके भाग जाते हैं, इंद्रदेव उठा के भाग जाते हैं। तो अंशुमान और सभी सगर के जो 60,000 पुत्र है सब ढूंढने लगे, अरे कहाँ है वेर इज होगा सर, किसको पता नहीं है। सो सगर महाराज को पता चल जाता है कि अश्व नहीं है। अरे अश्व कौन चोरी करके ले गया, ढूंढो पूरे त्रिलोक में ढूंढना चालू करो। तो उस समय ये एंटायर अर्थ वॉज जम्बू द्वीपा। मुझे लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन किया था भूवर महाजना सभा सत्य, तो ये भूलोक को जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पे जितना भी पूरे लोग है, मार्स, सैटर्न, जुपिटर सब जितना भी है, सभी वहाँ पे सभी खड्डे खोदने लगे इन लोग 60,000, तो पूरे धरती का पूरा हालत खराब करने लगे। तो सभी त्रिलोक में अरे क्या रहा है, नहीं सगर महाराज के पुत्र उनके अश्वमेध को अश्व को ढूंढ रहे। सभी बताते कि आज भी बोलते ना जो धरती पे जो खड्डा है ना, खड्डा जो समुद्र, ये सब सगर महाराज के जो कंट्रीब्यूशन है उनके पुत्र ने इतना सब खड्डा खोद दिया था कि इतना सारा खड्डा हो गया है समुद्र में, इतना डीप ट्रेंचेस, इतना सारा जो आज भी उसका डेप्थ पता नहीं है, इन्होंने खोद के रखा था। तो पूरे सभी जगह पे ढूंढते, सभी ढूंढ, किसको पता ही नहीं चल रहा देखिए। तभी बोलते वापस आ जाते हैं सगर महाराज को, सॉरी डैडी नॉट एबल टू, व्हाट, क्या कोई सॉरी वॉरी नहीं, जाओ पुनः ढूंढो, है ही नहीं, क्या नहीं है, जाओ, अगर धरती पे नहीं है तो नीचे पातालोक तक जाओ, ढूंढ के निकालो किधर है बोल के। तो इन लोग बताते कि सगर महाराज के जो पुत्र है नॉर्थ ईस्ट साइड में से धरती को पार करके धरती के नीचे 4 हाथियां हैं जो इस जम्बू द्वीप को सपोर्ट करता है। 4 आज हम लोग आराम से बैठे हैं क्योंकि वहाँ पे नीचे हाथी हमारा सिर के ऊपर रखा है, ये फैक्ट है। अगर वो जरा भी हिल जाते जरा तो यहाँ पे अर्थक्वेक हो जाता है, वन ऑफ द रीजन। तो उसको पार करके ये 60,000 सब नीचे जहाँ के सीधा जाके नीदर रीजन से पाताल लोक तक पहुँचते हैं और वहाँ पे कपिल देव के आश्रम तक पहुँचते हैं। इसने क्या किया था इंद्रदेव ने, उसने वो जो अश्व को जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध के रखा था, ढूंढते रहो तुम्हें नहीं मिलेगा। कपिल मुनि एकदम ध्यान, यही कपिल मुनि, ये देखिए अभी पता है कहानी आ जाता है, वाई व्हाट इज द रीजन जिस देश में गंगा बहती। कपिल मुनि तपस्या में बैठे थे, एकदम ध्यान पूर्वक, कंप्लीटली सरीन। तो इन लोग देखिए भागते भागते आ गए, अरे अश्व मिल गया। यही है, अंशुमान नहीं था, ये 60,000 लोग का करामत है। अरे अश्व मिल गया। और देखिए अरे अश्व पर किसने चोरी किया, कौन चोरी किया, कौन, अच्छा इसका था, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस, व्हाट यू सी यू बिलीव। जो मैंने देखा वो तो सच है ना, जिसके घर पे मेरा दौलत मिला तो वो चोर है ना, ठीक है। मैंने देखा कपिल मुनि के आश्रम में जो अश्व था, इसका मतलब अश्व कपिल देव ने चोरी किया था। सोचे समझे, इसलिए वन शुड बी वेरी पर्टिकुलर। कोई कभी कभी गुस्सा आ जाता है और हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, इसलिए जब गुस्सा आ जाता है फर्स्ट यू कूल डाउन और उसका प्रॉज एंड कॉन्स देखना चाहिए, उसका क्या परिणाम क्या होगा। हम तुरंत गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं,
कभी कभी हम बोलते हैं ना पति पत्नी का झगड़ा होता है और कुछ भी बोल देते, और उसके बाद उसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या नहीं होता है। आजकल बोल देते, उसके बाद हम व्हाट्सएप में आई एम सॉरी, आई एम दिस, आई एम रॉन्ग। मैं क्यों सॉरी बोलो? बेटर बोलने से पहले सोचना तो चाहिए था। सो फर्स्ट यू शुड थिंक। इन्होंने सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनकी संस्कृति है असमंजस्य की वजह से भाईगिरी बन चुका था। अरे क्या सोचने का, यही चोर है, मारो उसको, पूरा धरती का हालत खराब किया, इसको मारने के, इसके पकड़ के धोना चाहिए। क्योंकि उनकी जो प्रयास को उनको कपिल मुनि के ऊपर निकालने का था। पिताजी बोले ढूंढे, आज ढूंढ के, अभी तू कहाँ था, वो गुस्सा उनके ऊपर निकालने वाला। तो तलवार लेके कपिल मुनि के सामने दौड़ते दौड़ते कपिल मुनि ने सिर्फ आँख खोला। देखिए ये आजकल कोई न्यूक्लियर वेपन या एटम बॉम्ब या कोई उन्होंने सिर्फ आँख खोला। आँख खोल के सिर्फ इतना ही बोला वो बोलने में से उनकी जो जठर अग्नि है ना, जठर अग्नि, सब लोग के हृदय पेट में जठर अग्नि है, वो जठर अग्नि इतना प्रज्वलित हुआ कि वो खुद के अपने आप शरीर जलने लगा। बर्न टू एशेस, राख बना दिया। वहाँ एक सेकंड में पूरा राख बन गए। 60,000 पूरे जितने भी पुत्र थे सगर मारे राख बन गए। फुली बर्न टू एशेस, नॉट इवन सेकेंड। सिर्फ एक मुनि के पावर में, कपिल देव के इसमें से। देखिए दिस वॉज अ रिएक्शन। और जब अंशुमान को पता चलता है मेरे चाचा लोग कहाँ हैं, वेर आर माय चाचास, कहाँ गए, बोले थे उन लोग नीचे बड़े वॉरियर है। तो अंशुमान भागते भागते आ जाता है। तो वो देखते हैं, देखिए प्रज्ञा क्या है। वो देखते हैं, हाँ अश्व मिल गया। पर वो कंक्लूजन ये नहीं है, बाद में देखा कि राख बन चुका है। तो एक सत्वगुण का व्यक्ति जाके पता चला कुछ ना कोई गलती तो हुआ है, और दूर में उनको दिखता है कपिल मुनि वापस तपस्या में बैठे हैं। तुरंत जाकर साष्टांग दंडवत देते, कपिल देव मैं जानता हूँ आप कौन हो, आप भगवान स्वयं हो। मेरे ये जो पूर्वजों के इनका कारण क्या है, इनका कारण कौन है, और इनकी जो उद्धार करने के लिए मेरे को मार्गदर्शक बता दी। देखिए एक प्रज्ञा क्या है, एक सत्वगुण का प्रज्ञा क्या है, एक तमोगुण का प्रज्ञा क्या है, रजोगुण का प्रज्ञा। सत्वगुण व्यक्ति बताते कि तुरंत ही मेलोज डाउन, कुछ डिसीजन लेने से पहले वो सोचता है, सोच के बाद में उसमें प्रज्ञा विचार करता है कुछ तो गलती हुआ है। कभी मुनि कभी ऐसे शाप नहीं देते, हमसे ही कुछ गलती हुआ है। तभी कपिल देव बताते हैं कि अंशुमान, तुम्हारी ये जो चाचा लोग हैं या जो तुम्हारी पूर्वज है, इनको इनकी मिथ्या अहंकार से इन्होंने खुद की नाश किया है। अगर तुम्हें इनका उद्धार करना है तो तुम्हें गंगा को बुलाना पड़ेगा। स्वर्ग लोक से यू हैव टू कॉल मदर गंगा। ये माता गंगा को जब बुलाएंगे तो तभी इस तुम्हारा पूर्वजों का उद्धार होगा। दे विल बी लिबरेटेड। बाकी कोई चारा नहीं है। अंशुमान वहाँ के छोड़ भी सकता है। देखिए उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं यहाँ का वंशी हूँ, इनका वंश हूँ, मेरा परम कर्तव्य बनता है। इनका गलती हुआ होगा पर मेरा फर्ज बनता है कि इनका उद्धार करने के लिए। आजकल हम सोचते हैं कि छोड़ दो, मर गए तो मर गए, मेरे को क्या लेन देना, चलो मेरा गलती हुआ, अभी आप नहीं। यस, दिस इज व्हाट कंट्रीब्यूशन इज। वी आर आंसरेबल टू आवर एंसेस्टर्स। इसलिए कभी कभी हम देखते ना पिंडदान, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। एक व्यक्ति भक्त बनने से नरसिम्हा देव तुम्हारे 7 पूर्वज भक्त बन जाते हैं और 7 पूर्वज वापस आने वाले भक्त बनते हैं। दैट इज अ पावर ऑफ बिकमिंग। यू आर आंसरेबल टू गॉड।
इसलिए अंशुमान पूछते कि मैं इनका कैसे ऋण को चुका सकता हूँ, इनका कैसे उद्धार कर सकता हूँ। तभी कपिल मुनि बोलते हैं बाकी कोई नहीं है, गंगा को तपस्या करके बुला लो, जब गंगा का पानी आके इधर बहेगा तभी इन लोग का उद्धार होगा, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। तो अभी माता गंगा को कैसे बुलाए उसका एक अलग ही कथा है। और बता देना सीरियल एंड में क्या अंशुमान वो सक्सेसफुल वो सक्सेसफुल थे माता गंगा को बुलाने में। इसके बारे में हम जब भी हमें अगले मंगलवार हमें अवसर मिलेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो यहाँ पे हम विश्राम देंगे कथा को, और हम भगवान की हरि नाम हम एक अलग कर सकते हैं, उसके बाद हम